جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ سیشن جو ہے اس وقت جاری ہے، بہت سارے اہم معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جو اب تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق چودھری نثار اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، اور چودھری نثار صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں، ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دیں، ہمیں جسٹ بریفنگ دیں، اور سوالات جو ہیں تلخ جو پوچھے جا رہے ہیں ان کے جوابات بھی کہا جا رہا ہے کہ دیے جا رہے ہیں، جسٹ خالی یہ جو ہم تک انفارمیشن پہنچی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ عوامی مسلم لیگ کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ سب تشریف رکھتی ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ، ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی، سینئر اینالسٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ جو آج کا اجلاس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ٹائم ٹوٹل پورا کیا جا رہا ہے یا اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے آج کے اجلاس کا؟ دیکھیں، جمہوری حکومتوں میں تو اس کی امپورٹنس ہے، لیکن جو یہ چولیں مار رہے ہیں آگے چودھری نثار جیسے تھرڈ گریڈ لوگ، اور یہ باتیں کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے آپ بات کریں، میڈیا سے نہ کھیلیں۔ اور شجاع پاشا کا جو سرنڈر کہا جا رہا ہے، میں سمجھتا اس کا ہوں، مفہوم ذرا کچھ سمجھا دیں، میرا سرنڈر خیال کیا جا میں رہا ہے۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر جو سمجھتا ہوں کہ جنرل شجاع پاشا نے اپنا کوئی ذہن بنا لیا ہوا ہے، تو وہ کچھ انہوں نے مستعفی اس ہونے کا جا رہے اظہار، ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے ایسے کیا ہوگا کہ بھی آپ جو کہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا خیال ہے کیونکہ اندر یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ آپ اندر کی باتیں ان کیمرہ بریفنگ کا مطلب یہ، اگر آپ نے سارے پھر تو صحافیوں کو بلا کے پریس کانفرنس کر لیں۔ یہ دیکھیں، حکومت کی بہت سینسٹیو چیزیں ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آن اوتھ بھی کی جاتی ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ کا ایک بڑا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہے یہ بریفنگ ہوئی، ایک اچھی بات ہے انویسٹیگیشن ہو، نو ڈاؤٹ کہ ایک اچھی بات ہے یہ طے ہو کہ بھئی کون ذمہ دار ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن ہم نے پاکستان کی بہتری اور اگلے اقدامات کے لیے، اس کی رکاوٹ کے لیے اور اپنے ملک کی عزت اور رسپیکٹ کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ یہ آخری واقعہ ہے۔ دیکھیں، جب ریمنڈ ڈیوس تھا تو میں نے یہ کہا کہ اس سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، ہم اس جگہ آ گئے۔ اس سے اسامہ سے بڑا واقعہ بھی، اس کا مطلب ملا عمر کوئٹہ شورا کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، اگلا ٹارگٹ کوئٹہ ہے۔ دیکھیں، باتیں تو ہو رہی ہیں نا، لیٹس بی آنیسٹ، کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا، اور جو اس ملک میں دیکھیں 80 آدمی ایک خودکش حملے میں مر رہے ہیں، یہ اس سارے سسٹم کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ بھرتی سینٹروں میں نہ جائیں، لوگ ایسے اداروں میں نہ جائیں جو ملک اور دفاع اور سلامتی کی علامت ہیں، پھر ان سیاستدان کو آگے کریں کہ آئے جناب یہ بھی کام آپ ہی کریں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج آئی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ان کیمرہ سیشن ہے، ان کو سوال کرنے کا حلقہ ہے، لیکن آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کر بھی سب کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ اور کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن لڑائی کی جنرل بٹ کو اپائنٹ کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی۔ آرمی جو ہے جنرل شوکت جنرل عزیز کو اپائنٹ کرنا چاہتی تھی، انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ یہ پرابلم ہے کہ ہمارا سیاستدان آئی ایس آئی سے خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ ان کے متحد ادارے ہیں، اور یعنی بے نظیر شہید بھی آئیں اور انہوں نے جنرل کلو کو لگایا۔ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق فوج کو بھی چلانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج میں بھی کوئی بٹ جرنیل ہو، چلیں بٹ جرنیل ہونا چاہیے، لیکن لیٹ می فنش، ادارے کے متحد ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اگر کل جو بھی جنرل پاشا فیصلہ کرتے ہیں اگر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایس آئی کی پالیسی بدل جائے گی۔ دیکھیں، یہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ادارے کا مسئلہ ہے، اور پاکستان بہت بڑے پریشر میں آ رہا ہے، اور آپ انٹرنیشنل پریشر کی گیم کھیل رہے ہیں۔ پہلے ایک مشترکہ قرارداد جانی چاہیے کہ وی کنڈیم امریکن دس اگریشن، لیکن دیکھیں لسن، اگر اس حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے، یہ حکومت اتنی بے شرم، لاچار اور ڈس آنیسٹ، اور میں اس سے زیادہ کیا جملہ کہوں کہ لائیو جا رہا ہے یہ پروگرام، کہ ایک پروٹیسٹ لارج نہیں کر سکتی 18 کروڑ عوام کے لیے، ایک پروٹیسٹ لارج نہیں کر سکتی امریکن ایمبیسی کے خلاف، تو یہ آپ کیوں ہمارے وقت کریں گے؟ کل ہم نے امریکن ایمبیسیڈر کو کہا گیا کہ جی دفتر خارجہ طلبی ان کی ہوئی، وہاں ان کا استقبال کیا گیا، امریکن ایمبیسی کہہ رہی ہے وہ خود سے گئے تھے۔ جب آپ کا پرائم منسٹر سیر سپاٹا کر کے یورپ کا، فرانس کا آتا ہے اور انگریزی میں تقریر کرتا ہے تو اس کو تو قوم کی کوئی فکر نہیں، سیدھی سادھی بات ہے۔ یہ جنرل پاشا کا سرنڈر کا جو یا تو ان کو کچھ الفاظ کے معنی نہیں پتا، کیونکہ دیکھیں سرنڈر آپ دشمن کو کرتے ہیں۔ یہ کیا فردوس امان کہنا چاہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اور سول لیڈرشپ جنگ میں ہے فوج کے ساتھ؟ مطلب سرنڈر تو آپ اسی وقت کرتے ہیں نا کہ دشمن سے آپ جنگ ہار گئے، آپ نے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ جو امپلیکیشن فردوس امان کر رہی ہے یہ نہایت
अनसेवरी है, अनएक्सेप्टेबल है। ये लैंग्वेज उनको सोच समझ के, एक तरफ तो वो कह रही हैं कि जी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए और हमें बड़े एहतियात से बात करनी चाहिए, तो खुद क्या ये मैसेज दे रही हैं कि जी सरेंडर कर दिया, जैसे कि फौज की कोई जंग हो रही थी और पार्लियामेंटेरियंस दुश्मन थे उनके, जिनके सामने और मैं समझती हूँ कि ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारा तो खैर पीटीआई का प्रोटेस्ट आज हुआ है, जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा है कि कौन सी ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है, जो इन कैमरा सेशन हो रहा है, कौम को क्यों नहीं बताते। लेकिन अगर हो रहा था इन कैमरा सेशन तो मजाक ही बन गया ना, मिनट बाय मिनट खबरें चैनल्स पे खबरें आ रही हैं, अभी खत्म नहीं हुआ और चैनल्स पे खबरें आ रही हैं, तो दिस इज रिडिकुलस। मतलब आपने जमहूरियत का, आपने पार्लियामेंट का, आपने अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस का एक मजाक उड़ा दिया है। और जहां तक अकाउंटेबिलिटी का है, मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है कि फौजी लीडरशिप ने आके पार्लियामेंट को एक रिस्पेक्ट दी, एक एक्नॉलेजमेंट दी कि दे फंक्शन अंडर द सिविल रूल। लेकिन जो दूसरी अकाउंटेबिलिटी है, जरा जरदारी साहब से भी तो कोई पूछे कि उनको कैसे पता था इस सब चीज का पहले, क्योंकि मैं 100% कन्विंस्ड हूँ कि हकानी और जरदारी को पहले से पता आपस था में मिले और इन्होंने आर्टिकल्स ऊपर नीचे आए नहीं की कि बताया अपनी फौज को। आप भी तायद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब फौज बाला फौज से ये काम किया गया। देखें इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और ये नवाज शरीफ की कमअक्ली, मैं बात का समझता हूं कि ये भी आसिफ जरदारी की टिप पे खेल रहे हैं। ये सब कुछ आसिफ जरदारी चाहता है जो कुछ हो रहा है। मैं ये दुनिया के प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, ये सब कुछ उसकी सियासत के हिस्सा है, उसकी गीटियां लगाई हुई हैं। आज ये जबान जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक ही इदारों से खतरा है, बाकी तो सब लोग आसिफ जरदारी के साथ हैं। देखें मुशर्रफ को उसने यूज किया, निकाला, नून को 3 साल उसने इस्तेमाल किया, निकाला, काफ लीग को अब उसने लिया, अब देखें ये तावीज कितने दिन उसका, जेयूआई के उन्होंने साथ किया, एमक्यूएम दोबारा आ गई। सो ये सारे आप, और जेयूआई का भी मुझे नहीं पता कि उनका हो सकता है, देखें अगर एमक्यूएम दोबारा वो भी ज्वाइन कर लें, हो सकता है एवरीथिंग। मैं तो आपके कह रहा हूं कि हो सकता है। अब मसला क्या है, गरीब आवाम का मसला, जिनकी गैरत और अहमियत और ये सारी चीजें, उनको अल्फाजों में उलझाया जा रहा है। भाई ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है, डीजीएमओ वहां मौजूद है, डीजीआईएसआई वहां मौजूद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ, एयर चीफ। दिस शोज कि दे हैव रिस्पेक्ट फॉर द पार्लियामेंट, they have respect for the elected representative, but that doesn't mean you insult them. मैं ये नहीं कहना, सवाल पूछने का तो हक है अरकान पार्लियामेंट। देखें बाज़ का गाली भी तरीके और सलीके से दी जा सकती है, साहब बहादुर कह के भी गाली दी जा सकती है, सर कह के भी अपना, ये तो बड़ा चाइल्डिश है। देखिए डीजीआईएसआई ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। देखें मैं समझता हूं कि देखें सारा मलबा, एक इस दुनिया में एक बात याद रखें, एक बहुत बड़ा सेटअप जो है ना वो आईएसआई के की तबाही और बर्बादी चाहता है। ये पहले दिन आ गया जनाब अली के आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर करना चाहते हैं, और रहमान मलिक साहब वहां मौजूद थे लाहौर फोरम में। मैंने कहा अतवार बाजार तो आप चला नहीं सकते, और 11 जर्नैल जहां बैठते हैं। देखिए इनसे जो हमारी फौजी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लकली एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आज अगर जनरल पाशा रिजाइन भी कर जाते हैं तो क्या होता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो आगे ही इशू ये नहीं है। इशू ये है कि ठीक है आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है उसको आप आइसोलेट करें, और मैं समझती हूँ अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जब इस्टेब्लिश होती है तो इस्तीफा देने में भी, रेजिग्नेशन में भी कोई अभी जो खबर आ रही है, जो टिकर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जनरल पाशा ने कहा कि अगर पार्लियामेंट मुझे कहती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। मैंने आपसे क्या क्या उन्होंने एक ज़हन बनाया बना लिया, और अगर इसी पे ये बगले मार रहे हैं तो इससे बड़े बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़हन अपने तौर पर बनाया कि वो इस्तीफा देके घर चले जाएंगे। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आगे ही वो एक्सटेंशन में है। नहीं, लेकिन 1 साल की असल इशू तो ये है ही नहीं। असल इशू ये है कि ये जो मेरी समझ में आता है कि जी अगर आप ये करवा रहे हैं तो आप क्या नतीजा निकालना चाह रहे हैं, कि आप अपनी पॉलिसी बदलेंगे, आप अमेरिका से छुटकारा करेंगे, आप कोई रेजोल्यूशन लाएंगे जो कंडेम करेगा अमेरिकन यूनिलैटरल एग्रेशन, वो जो जिस तरीके से एबटाबाद में आए, अनआर्म्ड लोगों को मारा जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और अमेरिका और वेस्ट में अब ये पॉइंट रेज हो रहा है कि उसामा अगर अनआर्म्ड था तो उसको ट्रायल करनी चाहिए थी, उसको आपने मार क्यों डाला और उसकी लाश आपने फेंक दी। ये इश्यूज का जवाब हमें चाहिए। ये आपस में अब देखें ना, चौधरी निसार का कहना कि जी ऑर्डर ना दें, ब्रीफिंग दें, मतलब ये एक बदतमीजी है। एक बंदा आपको ब्रीफिंग दे रहा है, वो ऑर्डर क्या दे रहा होगा उनको।
जब वो आ गया ब्रीफिंग देने के लिए तो वो ऑर्डर देने तो नहीं आया। लेकिन वो जो DGI ने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक इस्तीफा मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए हम तैयार हैं। DGI ये कह रहे हैं कि एहतसाब के लिए तैयार हैं। शेख साहब आप पिंडी वालों पे गहरी नजर रखते हैं, उनकी नब्ज पे आपका हाथ है। फौज खुद ये कहे कि बनाओ ये कमीशन, जुडिशल कमीशन, जिसकी बात किया नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ फौज ये कहे कि बनाओ ये जुडिशल कमीशन, क्योंकि फौज जो है, देखें एक हादसा हुआ है, फेल्यूर है, वो आए हैं उन्होंने देख, और ये जो हेलीकॉप्टर ये जहाज है, पाकिस्तान इतनी बड़े बॉर्डर इलाके हैं, ये पहाड़ी इलाके शिलाके से ये एक्सरसाइजें बहुत सारे लोग करते रहते हैं। और फिर जो आज ये कहा गया कि जहाज वहां खड़े थे, BVR उसको कहते हैं जी, वो BVR यूज करते, मिसाइल वो काबल, उसके लिए पाकिस्तान आना जरूरी नहीं था। हमें इस सारे हादसे से सबक सीखना चाहिए, जिस तरह, और अमेरिका में बिल्कुल मोहतरमा ने ठीक बात कही है, लोग कह रहे हैं कि आपने उसकी लाश की भी तौहीन की है। एक तरफ आप कहते हैं हम मुसलमानों के साथ बहुत ठीक हैं और हमारे, और एक अनआम आदमी को मारा गया ताकि वो, और ये बेवकूफ लोग हैं, कम अक्ल हैं, ज़हनी पस्ती के शिकार हैं, इनको ये मालूम नहीं कि उसामा मरा हुआ ज्यादा खतरनाक है एक बीमार उसामा से। बाकी लगता है वहां उसामा था आपको, था या नहीं था, ये हमारे लिए तो एक इशू खड़ा हो गया ना, बिल्कुल, और जिंदगी और मौत का इशू। और मैं समझती हूँ जुडिशल कमीशन बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एहतसाब ना सिर्फ फौजी लीडरशिप का होना चाहिए, क्योंकि देखिए तो मियां नवाज शरीफ की जो उन्होंने मुतालबा किया, उसमें मैं समझती हूँ जुडिशरी के अलावा और लोगों को भी होना चाहिए। लेकिन जो रेडार्स का आप कह रहे हैं जी काम कर रहे थे, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मैं बड़े अरसे से सिक्योरिटी के इश्यूज को डील करती हूं कि आपने अमेरिका को अपने रेडार्स की लोकेशन, उनके कोड, सारा कुछ बताया हुआ है। और ये अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग इस हद तक की है तो इसका नुकसान बहुत सख्त होगा, क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। लेकिन डिप्टी एयर चीफ कह रहे हैं, आज पार्लियामेंट में डिप्टी एयर चीफ ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि अमेरिकन हेली आए और यहाँ पे उस एरिया में उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ये तो फिर इंटेलिजेंस, कल बलग्राम से इंडिया भी आ सकता है, देखिए हमें वो भी नहीं पता होगा, हमारे रडार्स काम नहीं कर सकते। हमें वक्त की नजाकत को समझना चाहिए। हम सैंडविच बन गए हैं। हामिद करजई भी इन्फ्लुएंस एजेंट है इंडिया का। अगर उसको $500 मिलियन मिले हैं तो ये 500 उसको कोई पठान होने की वजह से नहीं मिले हैं, कि हमदर्दी की वजह से नहीं मिले हैं, बट उसको मिले हैं इंडियन के इन्फ्लुएंस एजेंट होने की वजह से। जो कुछ उनका बलूचिस्तान में और दूसरे इलाकों में रोल है वो नोटिसेबल है। अब हमें मसला ये है कि देखो इंडिया को एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इनफ इज इनफ। हमारा इंडिया के साथ जो मसला है वो टोटली डिफरेंट है, और उनको ये पता है कि उन्होंने जब लश्कर तैयबा का मसला हुआ तो वो हमारे कुछ लोग कह रहे थे जी कोई गल नहीं, शेखुपुरा में एक आधा हमला कर भी जाए, जिस तरह इन्होंने एबटाबाद में किया। नहीं तो आपको पता है कि सरदारी साहब ने तो सुना इजाजत दे दी थी, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 26/11 हुआ, उसकी आप जिक्र करें। 26/11 पे वो तैयार थे कि एक नमाइशी, हम जरा हमारी बबक बढ़ जाए, हमारा मुल्क में बड़ी इंसल्ट होगी, हमें शेखुपुरा में आके शेख हाफिज सईद साहब के उस कंपाउंड में आके हमला करने दें। ये तो आर्मी ने कहा नो वे। लेकिन और हम उनके सारा जो मसला है उनको पता था कि दिस विल बी ये जो हमला होगा, दिस विल बी ए क्लियर कट वॉर। और इंडिया का सारा इंडिया जो है सवाए असम के कुछ इलाके के, उनको पता है कि उसके साथ क्या। जनरल पाशा भी कह रहे हैं कि ये अगर पार्लियामेंट कोई कमीशन बनाती है तो उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हो। जुडिशियल कमीशन की बात नहीं की, पार्लियामेंट्री कमीशन का। बट आई थिंक पार्लियामेंट अगर जुडिशियल, मेरी खबर आपसे सही नहीं, तो अगर पार्लियामेंट जुडिशियल कमीशन बना देता है तो कोई हर्ज नहीं। और जो इंफॉर्मेशन जनरली आ रही है कि फौज को कोई इतराज इन प्रिंसिपल नहीं है जुडिशियल कमीशन पे, लेकिन और होना भी पार्लियामेंट चाहिए एज प्रिंसिपल। सारी दुनिया में पार्लियामेंट जुडिशियल बस कर दें जी, काफी जुडिशरी को आपने हर काम में डाल दिया। जो भी कमीशन बनेगी उसमें सदर का एहतसाब भी होना जरूरी है। उनका आर्टिकल छपा जिसमें तारीफ की गई कि जी जॉइंटली हमने ऑपरेशन किया, ऐसी बातें लिखी गई। और उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने उसी दिन हुसैन हक्कानी का रोल सबसे मशकूक है। ही इज वर्किंग एज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ USA। तो उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो समझ तो हमारे इदारे क्या करें? देखें हमारे इदारों को ये पता है कि जी हमने सारों को कश्ती में चढ़ा लिया है। अगर फौज हमारे रास्ते में कोई मसला ना हो तो हम अगला दौर भी हमारा ही है। देखें वो अगले दौर की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इन सब लोगों को उन्होंने टीके लगा दिए हैं, जितनी उनकी पार्टियां हैं उनको इन्होंने कोई 2000 सीसी के टीके लगा के सुला दिया। इसका मतलब है इसी में खुश हैं। और कौम झंडा और डंडा, लेकिन कौम जो है वो सो नहीं रही, कौम जाग रही है। कौम सवाल कर रही है अपने हुक्मरानों से, अपनी सिविल और अस्करी क़यादत से कि इन तमाम तर सवालात का जवाब दें कि एबटाबाद ऑपरेशन में किसकी नाअहली थी और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर क्यों समझौता किया गया। इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।